Good morning, students. As we have discussed in last class the concept of JTable. With the help of JTable, we can display data in a tabular format. Clear, students? Yes, sir. प्रोग्राम बना के देख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Okay. So I am opening that program. File menu, open. This was the program. Hello. Hello. Yes, sir. सुन पा रहे हैं students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this was the program which we have developed in last class. With the help of this program, we are able to display the details of these students in a tabular format. Suppose we run this program. Java space J table example demo.java. As you are seeing the output, we are able to display the data in tabular format. Clear, students? Yes, sir. But this is a static table. A static table means the size of this table has been decided at the time of compilation. I show you the program. This is the program. When we create a table, we say t equal to new j table data comma heads. It means whenever this table will be displayed, this table can consist of the data available in data, and our string variable string object data consists of these 5 rows, consist of the details of 5 students. It means this table size has been decided at the time of compilation time. Therefore, this is known as static table. Static table means now we cannot change the size of this table. What do you mean by changing the size of a table? Changing the size of a table means now we cannot increase or decrease the rows in this table. अगर हमें इस टेबल में से कोई रो डिलीट करनी है, we cannot delete a row. अगर हमें इस टेबल में कोई रो ऐड करानी है, we cannot add a row because this is a static table. Clear, students? Yes, sir. But whenever we will be retrieving the data from the database, we are required to work with dynamic table because we don't know how much rows will be retrieved from the database. If there are 10 rows in the database and we are retrieving all the rows, then 10 rows will be retrieved and we are required to create a table having 10 rows. But if in our table having 50 rows, then, or if we are retrieving all the rows from the table, then 50 rows will be retrieving and we have to create a table having 50 rows. It means we are required to create a dynamic table. Clear, students? Yes, sir. Yes, sir. How we can create a dynamic table? देखिएगा, प्रोग्राम देख पा रहे हैं? Yes, sir. To create a dynamic table, we have to work with a table model. So far, what we are doing, so far we are directly placing the data in a table. And if we are directly placing a data in a table, table size will be fixed according to data. Clear, students? Yes, sir. अभी तक हम क्या कर रहे हैं, टेबल में डायरेक्टली डेटा डाल रहे हैं. जैसा कि आपने देखा, ये हमने टी नेम की टेबल बनाई और इसमें डायरेक्टली हमने वो डेटा डाल दिया जो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है, और डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर ये 5 रोज का डेटा है, तो इस टेबल का साइज फिक्स हो गया 5 रोज. अगर यहाँ डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर 10 रोज का डेटा होता तो टेबल का साइज फिक्स हो जाता 10 रोज.
It means whenever we directly put the data in a table, table size will be fixed. There will be a static table. But if you want to draw a dynamic table, then you will not give the data to the table at the time of its creation. अगर हमें डायनामिक टेबल बनानी है तो हम टेबल को डेटा तब नहीं देंगे जब हम टेबल बना रहे हैं. वी कैन नॉट डायरेक्टली पुट डेटा विद इन अ टेबल. हम डायरेक्टली टेबल में डेटा पुट नहीं कर सकते हैं टू क्रिएट अ डायनामिक टेबल. देन हाउ वी कैन प्लेस द डेटा इन अ टेबल. अगर हमें डायनामिक टेबल बनानी है तो फिर हम डेटा कैसे पुट करेंगे टेबल में. टू क्रिएट अ डायनामिक टेबल वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ default table model. Default table model is a built-in class available in javax.swing.table package. Basically, this class is used to specify the model of a JTable. अगर आप टेबल में डायरेक्टली डेटा पुट नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक टेबल मॉडल बनाना पड़ेगा. टेबल मॉडल बनाने के लिए क्लास होती है डिफॉल्ट टेबल मॉडल. डिफॉल्ट टेबल मॉडल क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे. उस डिफॉल्ट टेबल मॉडल के ऑब्जेक्ट के अंदर आप डेटा डालेंगे और उस मॉडल ऑब्जेक्ट को आप टेबल में पुट कर देंगे. तो ऑटोमेटिकली जो डेटा आपने टेबल मॉडल में डाला है वो डेटा टेबल में पहुंच जाएगा. बट नाउ वी कैन चेंज द डेटा available in the default table model because default table model is by default dynamic. बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. दोबारा से समझ लीजिएगा कंसेप्ट. अगर आप डायरेक्टली टेबल में डेटा पुट करते हैं तो टेबल स्टैटिक बन जाती है. टेबल का साइज, टेबल में आप नंबर ऑफ रोज चेंज नहीं कर सकते हैं बिकॉज टेबल साइज विल बी डिसाइडेड बाय द डेटा ऑफ द टेबल. और जो हमने डेटा इंसर्ट किया है, अगर 5 रोज का इंसर्ट किया है तो टेबल का साइज भी 5 हो जाएगा. अगर 10 रोज का इंसर्ट किया है तो टेबल साइज भी 10 हो जाएगा. But if you want to change the size of your table at runtime as per your requirement, then you will not directly put data inside the table. Then you will create a table model. You will put the data in table model and you will put the table model in the table. But since table model is dynamic, you can add or remove data from the table model. As you will add data in the table model, table size will automatically be increased. As you will remove the data from the table model, table size will automatically be decreased. It means we will be able to create a dynamic table. Clear students? Yes, Students, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So now first of all we will create an object of default table model. Default table of model class is available in javax.swing.table package. This package has already been imported in our program. Therefore directly we can create an object of default table model. हमने object को name दे दिया model. Now we will instantiate this object. तो इस object को आप यहाँ पर टेबल से पहले इंस्टेंशिएट करा लीजिए. मॉडल इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट टेबल मॉडल. नाउ if you know what data is to be placed in table model, then here you can specify 2 arguments जो हमने JTable के ऑब्जेक्ट में दिए थे. जब आप टेबल मॉडल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और आपको पहले, आपके पास पहले से डेटा है जो डेटा आपको टेबल मॉडल में भेजना है, तो वो डेटा आप यहाँ पे सप्लाई कर दें और हेडिंग्स आप यहाँ पे सप्लाई कर दें. क्लियर? तो आपका ये सारा डेटा जो पहले हम डायरेक्टली टेबल में भेज रहे थे, हमने कहां भेज दिया? बताइए स्टूडेंट्स. हेलो, सुन पा रहे हैं? डिफॉल्ट मॉडल टेबल मॉडल के अंदर. टेबल मॉडल. क्लियर स्टूडेंट्स? अब जब हम टेबल बनाएंगे तो हम टेबल को डायरेक्टली कोई डेटा नहीं देंगे. अब ये हमारी ब्लैंक टेबल बन गई. अब हमें इस ब्लैंक टेबल में कौन सा मॉडल सेट करना है? जो हमने ये डिफॉल्ट टेबल मॉडल बनाया है, तो इस मॉडल को सेट करने के लिए JTable क्लास का मेथड कॉल करेंगे सेट मॉडल, और यहाँ पर डिफॉल्ट टेबल मॉडल का नाम दे देंगे जिसके अंदर हमारा डेटा है. तो एज यू आर सीइंग दिस एग्जांपल, वी हैव प्लेस्ड द डेटा in this model and this model has been placed within this JTable. Therefore that data will be displayed in your table. सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं.
एरर आ गई है, देखिए। एक एरर। हेड नहीं, हेड से शायद। नहीं ये अलग चीज है, दिस इज द डिफरेंट। कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं So share screen. सेम आउटपुट इज बीइंग डिस्प्लेड। Yes, sir. सर क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास दो मेथड हैं, समझ लीजिएगा। पहले ये आपके पास दो मेथड हैं टू डिस्प्ले डेटा इन अ टेबल। मेथड वन इज डायरेक्टली प्लेस द डेटा विद इन जे टेबल, बट इफ यू आर डायरेक्टली प्लेसिंग द डेटा विद इन अ जे टेबल, your table will be static. You cannot add number of rows in the J table, or you cannot remove a row from the J table. Clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Second method is do not place data directly in the table. First of all, prepare a data model, prepare a table model for a J table. डायरेक्टली जे टेबल में डेटा प्लेस ना करें। सबसे पहले आप एक टेबल के लिए मॉडल बनाएं। टू क्रिएट अ टेबल मॉडल, क्लास इज डिफॉल्ट टेबल मॉडल। First of all, create an object of default table model, then place data in that model, then place the model in the J table. If you are following this method, your table will be dynamic. Therefore, later on, if you want to add more rows in the J table, you can add. If you want to delete rows from the table, you can remove. Clear, students? Yes, sir. sir. Yes, अभी मैं आपको शो करता हूँ how you can add more rows in this J table. अब देखिए, अभी जब हमने डेटा बनाया तब हमारे पास ये 5 रोज थी। Yes, अंकित, you want to ask anything? हेलो अंकित, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो अंकित, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता था हमें ये डेटा टेबल में डिस्प्ले कराना है, इसलिए जब हमने टेबल मॉडल बनाया तो टेबल मॉडल में हमने ये डेटा डिस्प्ले करा दिया। टेबल मॉडल को टेबल पे सेट कर दिया। नाउ सपोज वी वांट टू ऐड सम मोर डेटा इन दिस जे टेबल। अब हमें इस जे टेबल में और डेटा ऐड कराना है, तो हम डेटा कहाँ ऐड कराएंगे? टेबल मॉडल में ऐड कराएंगे। Because now table doesn't consist of data, now data is contained by model. Table consists of model. तो हमें जब भी नया डेटा ऐड कराना होगा किसको ऐड कराएंगे? मॉडल को। जब भी हमें डेटा रिमूव करना होगा कहां से रिमूव करेंगे? मॉडल से। मॉडल में कोई भी नया डेटा ऐड कराने के लिए मेथड होता है ऐड रो। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. मॉडल कंसिस्ट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। मॉडल जो डेटा कंटेन करता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कंटेन करता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे न्यू ऑब्जेक्ट, ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस पूरी रो की वैल्यू दे देंगे। रो में सबसे पहले हमने क्या देना है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें नेम देना है, फिर मोबाइल नंबर देना है, फिर एड्रेस देना है, फिर जेंडर देना है। हमने दिया रो में, हमने रो में नेम दे दिया, मान लीजिए संदीप। उसके बाद मोबाइल नंबर दे दिया हमने, जो भी हम मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। देन उसके बाद हमें देना है जेंडर। जेंडर हमने दे दिया, जेंडर है कि एड्रेस, उससे पहले है एड्रेस। फिर हमें देना है एड्रेस, हमने एड्रेस दे दिया। कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एड रो का ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. सेव करेंगे, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे,
देन अगेन कंपाइल करेंगे। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन कराएंगे। Yes, sir. Now you can see the output. New row has been added to your table. देख रहे हैं, पहले 5 स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा था, अब 6 स्टूडेंट का डेटा आ रहा है। हमने डेटा ऐड कराया था ऑफ द स्टूडेंट संदीप। ये देखिए आप डेटा ऐड हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. In this way we can develop a dynamic table. ठीक है, क्योंकि जब भी हमें डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराना होगा तो डायनामिक टेबल की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले बनानी सिखाई है डायनामिक टेबल। नाउ वी आर एबल टू क्रिएट अ डायनामिक टेबल। Yes, sir. So therefore now we are able to, and we have also know how to get connected with the database. We also know how to retrieve the data from the database. Yes, sir. Therefore now we can retrieve the data from the database and we can put that data in the J table. क्योंकि अब हमें दोनों चीजें आ गई हैं, हम सीख गए हैं डेटाबेस से डेटा कैसे रिट्रीव कराना है, हम सीख गए हैं डेटाबेस डेटा को टेबल में कैसे प्लेस करना है। तो अब इन दोनों को कंबाइन करके हम वो प्रोग्राम बना लें जो हमें अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है। देखिए आप सभी लोग जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स में आपको रिपोर्ट्स बनानी है। तो अभी मान लीजिएगा हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो मान लीजिए इस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक रिपोर्ट बनानी है टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल दी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, हमें उन सभी स्टूडेंट्स का सारा डेटा देखने के लिए एक रिपोर्ट बनानी है। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ गया? Yes, sir. चलिए तो अब हम वही प्रोग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट इसी में मॉडिफिकेशन कर लें। Yes, sir. तो इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज। इसको अब नाम देते हैं जे टेबल डीबी एग्जाम्पल। डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। Database. सेव, नाम दे दें जे टेबल डीबी एग्जाम्पल। जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसको नाम दे दें जे टेबल डीबी एग्जाम्पल। जो मेन क्लास बनाएंगे उसको नेम दे दें जे टेबल डीबी एग्जाम्पल डेमो। इसमें जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको नेम दे दें जे टेबल डीबी एग्जाम्पल। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब हमें इस प्रोग्राम की डेटाबेस से कनेक्टिविटी करानी है, तो कौन सा पैकेज इंपोर्ट करें? MySQL. MySQL नहीं, SQL। import java.sql.string। now we have to get connected with the data। अब हमें डेटा कहां से लेना है? डेटाबेस से। तो हमें अपने पास से डेटा नहीं लेना। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि डेटा विल बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. एक बार देख लेते हैं हमें कौन से डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराना है। हमने डेटाबेस बनाया था DBSGI के नेम से। इसमें टेबल देख लेते हैं हमने किस नेम से टेबल बनाई थी। REG. हमने टेबल बनाई थी REG नेम से। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इस टेबल में कौन कौन से फील्ड्स हैं। डिस्क्रिप्शन, REG। हमने देखा इसमें 5 फील्ड्स हैं, नेम, मोबाइल, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब है हमें यही हेडिंग्स चाहिए, नेम, मोबाइल, एड्रेस, जेंडर, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डेट ऑफ बर्थ। तो हम केवल हेडिंग के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, डेटा के लिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ वी डोंट हैव द डेटा। नाउ डेटा विल बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। Database. स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहले हमने अब हमें डेटाबेस से भी कनेक्टिविटी करानी है। तो अभी Yes, तक हमें केवल फ्रेम चाहिए था। फ्रेम हमारा बाय डिफॉल्ट बन रहा है क्योंकि हमने क्लास इनहेरिट कराई है। We are required to display the data in tabular format. Therefore, we have declared an object of JTable class. We are required to create a dynamic table. Therefore, we have declared an object of default table model class. We are required to specify the headings for a table. Therefore, we have created an object of string class. Now, we are also required to get connected with the database. Therefore, we will create an object of connection class. Connection class. Create an object of prepared Statement. interface, and we are also required to retrieve the data from the table. Therefore, we will create an object of result set. Clear, students?
Yes, sir. अब सबसे पहले हमने टाइटल सेट किया, अपने विंडो का साइज सेट किया, डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सेट किया, फोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखिए जो हम ये मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहां पर हमारे पास पहले से डेटा नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब हम मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेटा और हेडिंग पहले से नहीं देंगे। अब आप सोच रहे होंगे हेडिंग तो हमारे पास है, हम हेडिंग पहले से क्यों नहीं दे रहे हैं? क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Because default table model class has only two constructors. डिफॉल्ट टेबल मॉडल क्लास के अंदर केवल दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, इसलिए हम डिफॉल्ट टेबल मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दो ही सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। एक तो उस क्लास के अंदर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि आप कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है विद टू पैरामीटर्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैविंग टू पैरामीटर्स। तो या तो हमें उसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना है या दो पैरामीटर पास करने हैं। अगर दो पैरामीटर हम तब पास करते हैं जब हमारे पास पहले से डेटा होता है और पहले से हेडिंग होती है, because first parameter is for heading data and second parameter is for headings. Clear student? अब हमारे पास headings तो हैं लेकिन डेटा नहीं है, therefore we cannot specify the data at the time of creation of table model. Therefore now we will create instantiate an object of default table model using default constructor. Clear? अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हमारा टेबल मॉडल तो बन गया, लेकिन हमने टेबल मॉडल में ये नहीं बताया है डेटा क्या जाएगा, हेडिंग क्या जाएंगी। अब हमारे पास डेटा तो है नहीं, हेडिंग्स तो हैं, तो हेडिंग्स बता दें। हेडिंग्स बताने के लिए मेथड होता है सेट कॉलम आइडेंटिफायर्स हेड्स। मेथड नेम से पता चल रहा है सेट कॉलम आइडेंटिफायर। इस मॉडल में कॉलम क्या क्या होंगे उन्हें आइडेंटिफाई करो, किससे? हेड से। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ गया? Yes, sir. अब हमें डेटा चाहिए, डेटा टेबल डेटाबेस से रिट्रीव होगा, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी की कोडिंग कर लें। डेटाबेस कनेक्टिविटी की कोडिंग करने के लिए ट्राई, सबसे पहले ड्राइवर लोड करेंगे। ड्राइवर लोड करने के लिए लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में कॉम डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। क्लास लोड हो गई, फिर कनेक्टिविटी कराने के लिए लिखेंगे कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन डबल कोट्स में JDBC कॉलन mysql कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट स्लैश डेटाबेस नेम डबल कोट्स क्लोज कॉमा यूजर नेम कॉमा डबल कोट्स में पासवर्ड। बताइए स्टूडेंट समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब क्या करें? डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के बाद क्या करें? Data retrieve. Retrieve the data from the database. To retrieve the data from the database, we will instantiate an object of prepared statement interface st equal to con dot prepare statement. Now we are required to retrieve the data from the database. Therefore, we will issue select command, select asterisk from table name. Now we have to execute this command. To execute the command, we will say rs equal to st dot execute query. When this statement will be executed, select command will be executed. Select command will retrieve the data, and this data will be placed within the object rs. Clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Now, what we are required? Yes. Now we have retrieved data in table. all the data from the database in our program in the object rs. अब हमारा जो डेटा डेटाबेस में था हमने अपने प्रोग्राम के अंदर रिट्रीव करा लिया rs ऑब्जेक्ट के अंदर। अब बताइए स्टूडेंट्स क्या करें? Display. Retrieve data from the rs one by one and add Yes, sir. those rows in the j table. अब हम इस rs से एक एक करके सारे स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव कराएं और उन्हें जे टेबल में ऐड कराते जाएं। सारा डेटा रिट्रीव कराना है इसलिए लूप चलाएंगे while
rs.next rs.next ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। डेटा रिट्रीव कराने के लिए हमें क्या क्या रिट्रीव कराना है? नेम रिट्रीव कराना है, तो नेम हम nm के अंदर लेंगे, nm इक्वल टू rs.getString। rs से डेटा रिट्रीव कराने के लिए दो मेथड होते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिट्रीव कराना है तो मेथड यूज करेंगे rs.getString। अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा रिट्रीव कराना है तो आप मेथड यूज करेंगे rs.getInt। हमारे पास जो नेम फील्ड है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए हमने कहा rs.getString। और हमें फर्स्ट फील्ड की वैल्यू रिट्रीव करानी है, इसलिए हम यहाँ पे उसका नाम भी दे सकते हैं और यहाँ पे हम उसका नंबर भी दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही यस सर। मोबाइल नंबर रिट्रीव करा लें, एड्रेस रिट्रीव करा लें, जेंडर रिट्रीव करा लें और डेट ऑफ बर्थ रिट्रीव करा लें। मोबाइल नंबर के लिए हमने वेरिएबल ले लिया MB, एड्रेस के लिए हमने वेरिएबल ले लिया ADDR, जेंडर के लिए हमने वेरिएबल ले लिया GEN और डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने वेरिएबल ले लिया DOB। नाउ हियर वी विल से getString2, getString3, getString4, getString5। क्लियर स्टूडेंट्स? yes sir Now we have to add this data within the J table. Clear students? यस सर। Can we directly add this data within the J table? no sir क्या हम इस डेटा को डायरेक्टली J table में ऐड करा सकते हैं स्टूडेंट्स? नो सर, यूजिंग मॉडल। मॉडल में ऐड कराना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो मॉडल में ऐड कराते हैं। मॉडल में ऐड कराना भी हमने सीखा था। मॉडल डॉट एड रो ब्रैकेट में न्यू ऑब्जेक्ट ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस में सबसे पहले नेम की वैल्यू जो कि nm के अंदर है, देन मोबाइल नंबर की वैल्यू जो कि MB के अंदर है, देन एड्रेस की वैल्यू जो कि ADDR के अंदर है, देन जेंडर की वैल्यू जो कि JEN के अंदर है, देन डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू जो कि DOB के अंदर है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। इससे हमारा डेटा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। add क्लियर स्टूडेंट्स? व्हाइल लूप क्लोज, व्हाइल लूप क्लोज होने के बाद ट्राई क्लोज, ट्राई क्लोज के बाद कैच, catch एक्सेप्शन E, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट E सेमीकोलन। क्लियर? अब ये जो हमने टेबल के साथ जो भी फॉर्मेट, अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और हमने टेबल के साथ ये जो भी फॉर्मेटिंग की है, चाहे तो हम ये फॉर्मेटिंग बाद में करा लें, चाहे हम ये फॉर्मेटिंग पहले करा लें, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराने के लिए कहीं भी करा सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं, ये स्टेटमेंट्स आप यहाँ भी लिख सकते हैं और ये स्टेटमेंट्स आप इसके डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कराने के पहले भी लिख सकते हैं, जहां चाहे वहां लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? yes sir अब जो हमने ये वेरिएबल्स यूज किए थे यहाँ पे NM, MB, ADDR, जेंडर, इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लीजिएगा। स्ट्रिंग NM, MB, ADDR, GEN, डेट ऑफ बर्थ। कंट्रोल S, go to the command prompt, compile, has been compiled successfully students। yes sir अब रन कराने से पहले टेबल में देख लेते हैं कितना डेटा है, तभी हमें पता चलेगा हमारा डेटा सही आ रहा है कि नहीं। तो वापस MySQL में चलते हैं, कमांड चलाते हैं, select asterisk from reg। ये देखिए we have 13 records। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? yes sir Now run your program। Now run your program। अच्छा, पहले कंपाइल करना पड़ेगा। क्या नाम था हमारे प्रोग्राम का? JTable DB डेमो, DB एग्जाम्पल डेमो। देखिए एरर आ गई है, देख पा रहे हैं? स्ट्रिंग की स्पेलिंग हमने गलत कर दी है। ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूं। सेव,
फिर से कंपाइल करते हैं। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कमांड विंडो? Yes, sir. Yes, sir. हैज बीन कंपाइल्ड सक्सेसफुली। Yes, sir. Yes, sir. रन करा दें। Now you can see details of all student. Okay, I share the screen. Details of all students has been retrieved in your table. देख पा रहे हैं? Yes, sir. 13 रिकॉर्ड्स थे, 13 की 13 रोज आपको रिट्रीव हो गई हैं। टेबल का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है। टेबल की रोज का साइज आप इसको कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्क्रॉल बार्स आ जाएंगे जहां से आप इसको स्क्रॉल करा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. In this way we can retrieve the data from the database and we can display that data within a table. Clear students? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, जो हमारा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में केवल टेबल ही आ रही है। तो एक तो हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि ये किस चीज का डेटा है, किस चीज की रिपोर्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. We don't know these are the details about students. We don't know these are the details about teachers. We don't know these are the details of what kind. क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. दूसरा, इसमें कोई बटन वगैरह नहीं आ रहे। हम चाहते हैं नीचे एक बटन आए एग्जिट का या क्लोज का, या एक बटन आए डिलीट का। हम जिस रो को सेलेक्ट करें वो रो, डिलीट बटन पे क्लिक करें तो वो रो डिलीट हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. So what we want to do, so far we are placing only one component JTable on a frame, but now we want to place multiple components on a frame. अभी तक हमने फ्रेम पे केवल एक ही कंपोनेंट प्लेस किया है, कौन सा? Table. JTable। लेकिन हम चाहते हैं हमारी फ्रेम पर क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएं। हमारी फ्रेम पर सबसे पहले टाइटल लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है जिसमें लिखा हो डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स या ऑल स्टूडेंट डिटेल्स। उसके बाद टेबल आए, टेबल में सारे स्टूडेंट्स का डेटा हो। उसके नीचे हमारे पास दो बटन हो, एक बटन हो डिलीट का और एक बटन हो क्लोज का या एग्जिट का। अगर हम वहां से एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट पे क्लिक करके एग्जिट हो सके। अगर हम किसी स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो जिस भी स्टूडेंट का डेटा हम सेलेक्ट करें, जिस रो को हम सेलेक्ट करें, डिलीट पे क्लिक करें, वो डेटा डिलीट हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. It means now we want to place multiple components with JTable on our frame. Clear students? Yes, yes, sir. अभी तक हमने केवल एक ही कंपोनेंट प्लेस करना था और उस कंपोनेंट से पूरे फ्रेम को फिल कराना था। इसलिए हमने उस कंपोनेंट को फ्रेम पर अकॉर्डिंग टू बॉर्डर लेआउट प्लेस किया और कंपोनेंट की पोजीशन दे दी सेंटर। क्योंकि जब भी हम किसी कंपोनेंट को बॉर्डर लेआउट के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं और अगर उसे सेंटर में प्लेस करते हैं तो उसका साइज ऑटोमेटिकली फ्रेम के साइज के इक्वल हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीपल कंपोनेंट प्लेस करने हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लेस करने हैं। सबसे पहले हमें सेंटर में टाइटल चाहिए, फिर उसके थोड़ा सा नीचे हमें टेबल चाहिए, फिर उसके थोड़ा सा नीचे दो बटन चाहिए। तो क्या ऐसी स्पेसिफिकेशन, ऐसा लेआउट बॉर्डर लेआउट के अंदर होता है? No, sir. नहीं होता। क्या किसी भी लेआउट के अंदर होता है? कार्ड लेआउट, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट? No, sir. नहीं होता। User तो इट मींस specific. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू ऐड कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर स्पेसिफिकेशंस। अब हमें कंपोनेंट कैसे ऐड कराने हैं? User specific. यूजर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम इसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करते हैं और कुछ कंपोनेंट्स और ऐड कराते हैं टू डिस्प्ले डिजायर्ड आउटपुट। तो हमें इसमें लेबल और चाहिए, तो यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, जे लेबल, मान लीजिए टाइटल के लिए। हमें दो बटन चाहिए, बटन ले लेते हैं जे बटन। एक हमें बटन चाहिए BTN डिलीट,
एक हमें बटन चाहिए btn क्लोज। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. अब ये हमने फ्रेम की सेटिंग कर दी। फ्रेम की सेटिंग करने के बाद ये हमने फॉन्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिए। फॉन्ट क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना लें, क्योंकि एक फॉन्ट हमें टाइटल पे अप्लाई करना है और एक फॉन्ट हमें टेबल पे अप्लाई करना है। टाइटल पे टेबल जो पे। फॉन्ट अप्लाई करना है उस फॉन्ट का साइज हमें बढ़ा देना है, ठीक है। तो उसको हमने दे दिया फॉन्ट F2 इक्वल टू न्यू फॉन्ट बलदाना, उसका साइज हमने दे दिया मान लीजिए 25। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, Yes, अब sir. अब सबसे पहले हमें लेबल डिस्प्ले कराना है, तो लेबल को इंस्टेंशिएट करें। लेबल का नाम था हमारा टाइटल इक्वल टू न्यू जे New लेबल। title. टाइटल देना है हमें ऑल स्टूडेंट्स डिटेल्स, देन टाइटल डॉट सेट फॉन्ट, Set font. देन टाइटल डॉट सेट बाउंड्स। अब हमें अपने फ्रेम पे कंपोनेंट्स किसके अकॉर्डिंग ऐड कराने हैं? User. अकॉर्डिंग टू यूजर स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेम पे कोई भी लेआउट सेट नहीं करेंगे, फ्रेम पे कोई भी लेआउट सेट नहीं करेंगे, तो हम फ्रेम पे लेआउट सेट करेंगे नल, सेट लेआउट नल। Null. अब यहाँ पे इसका सेट बाउंड्स करा दें, टाइटल डॉट सेट बाउंड्स। हमने टोटल विड्थ ली है कितनी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें ज्यादा कंपोनेंट्स चाहिए। मान लीजिए विड्थ इतनी रहने देते हैं, विड्थ बढ़ा लेते हैं 500, हाइट बढ़ा लेते हैं मान लीजिए हमने कहा 600। अब हमने टोटल विड्थ ली है 500, जिसमें हम अपने टाइटल का साइज करेंगे मान लीजिए 200। तो 500 में से 200 गया, बचा 300। 300 का हाफ करते हैं तो हो जाता है 150। तो हमने कहा 150 लेफ्ट, 50 टॉप, 200 विड्थ एंड 20 हाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, इसको sir. ऐड करा दें, ऐड टाइटल। ये हमारा टाइटल ऐड हो गया। टाइटल ऐड होने के बाद हमें टेबल डिस्प्ले करानी है। टेबल डिस्प्ले कराने के लिए ये हमने टेबल बना रखी है, ये सारी कोडिंग टेबल के लिए ही है, तो इससे हमारी टेबल बनेगी। क्लियर? ये सारी कोडिंग आप पहले कर चुके हैं टेबल के लिए। जे इक्वल टू नो टेबल, सेट मॉडल, सेट फॉन्ट, सेट रो हाइट, सेट बैकग्राउंड, देन उसकी हेडिंग सेटिंग करने के लिए, देन स्क्रॉल पेन लाने के लिए, ऐड। अब इसमें हमें बॉर्डर लेआउट सेट नहीं करना है, तो यहां से इसको हटा देंगे बॉर्डर लेआउट। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमें स्क्रॉल बार को ऐड कराना है, स्क्रॉल पेन को। टेबल को ऐड कराएंगे कि स्क्रॉल पेन को ऐड कराएंगे? स्क्रॉल पेन को। स्क्रॉल पेन को सीखा था हमने लास्ट क्लास में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें स्क्रॉल पेन के लिए क्या देने पड़ेंगे? सेट बाउंड्स। सेट बाउंड। क्लियर? तो स्क्रॉल पेन के सेट बाउंड्स दे देते हैं, स्क्रॉल डॉट सेट बाउंड्स। अब देखिए हम लेफ्ट से बता देते हैं कितने डिस्टेंस पे चाहिए। मान लीजिए लेफ्ट से हमने कह दिया 50, कॉमा टॉप से देखिएगा, टॉप से हमने टाइटल को 50 पे लिया था, 20 उसकी वेट की थी, 50 और 20 कितना हो गया?